Dr. Anshuman Kumar. And Kanika, if I can request you to put out the slide. Dr. Anshuman Kumar is the Director of Surgical Oncology. He has more than 2 decades of experience and unparalleled expertise. He has done his MBBS and MS in surgery, and then MCH in surgical oncology, MRCS, and he has also a deep interest in yoga. Besides the fact that he also understands administration, and that's no wonder that he's such a renowned doctor in India. He's a leading authority in this field, committed to providing exceptional surgical care and advancing cancer treatment. One thing which I can say, which is not there in his resume, is that Dr. Anshuman Kumar is a wonderful scientist, wonderful doctor, but he's also somebody who is studying Vedas from a point of view of health. And his understanding of health and Vedas and our traditional knowledge is, I would say, amazing, because I have yet to find somebody who has a deep interest in both sides of healthcare, the cutting edge modern science and as well as our ancient wisdom. So it's my pleasure and delight to welcome Dr. Anshuman. So may I invite Dr. Anshuman? Yeah, thank you, Dr. Shikha. And Kanika has taken tremendous effort to bring this conclave on ground reality today. And really, this is a bridging gap between, you can say, modern science, understanding of the nutrition, and all the kind of holistic care. That's the reason I started. And I'd like to share my presentation. Yes. Is it visible now? Not yet. I mean, you're visible. You are visible, doctor. No, screen is not shareable. No, your presentation is not visible. So, in case Kanika has it, then I can ask Kanika to share the presentation. She has the sharing rights also. No, ma'am, I don't have the sir's presentation. Okay, no problem. So, if you would like to share with me, I can share it. Kanika, can you just WhatsApp? Okay. Yeah, Kanika, can you WhatsApp your email ID to sir also? Sure, ma'am. So while the Kanika, just allow me from. So I would like to tell everyone that Dr. Anshuman and I have been on various television channels together. And what always surprised me about Dr. Anshuman was that while on the, like we have been on Z, we have been on Sahara, I mean, we have been on NDTV, we have been on CNBC. So what amazed me about Dr. Anshuman was that Dr. Anshuman always
spoke about prevention, even though he's a surgical oncologist. He does surgeries. But he always spoke about prevention, and his depth about understanding nutrition actually, I think, beats me also, because his understanding about nutrition comes at a cellular level, and his understanding about food in context of health was amazing. And that's why I requested doctor to not only talk about the allopathic aspects, but also talk about the ancient sciences and the nutrition. So yes, we can see the presentation, doctor. Okay, perfect. Thank you so much, and sorry for the delay. Not at all, Thank you, not Dr. at all. Shikhar. Really, it's a pleasure to be with you on Oncology Conclave. And that's the reason I started topic with integrative oncology. Although this word is new for our country or Southeast Asian country, but now China, Europe, and American, they started considering this integrative oncology as a newer concept, considering everything. And people must be surprised in the era of a digital world, especially Google ChatGPT can give you all the information. Why Dr. Shikhar has planned this kind of online webinar or conclave? हमारे शास्त्रों में लिखा है विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तो औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अगर आप बाहर हैं जहां 2G 3G काम नहीं करेगा, विद्या जो आपके जहन में बात उतर गई है, यही मित्र है। चाणक्य ने कहा था पुस्तकेषु चय विद्या परहस्तेषु यथा धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न स विद्या नाता धनम। मतलब पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन, जरूरत पड़ने पे कभी काम नहीं आएगा। इसलिए जो आपके जहन में है, 2G 3G हो ना हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। When we talk about the integrative medicine, there are a lot of chaos, confusion, clutter. The reason being, people very loosely start using the term alternative medicine, but we have to clear it. What is alternative medicine? What's complementary medicine, which is not the integrative medicine? Alternative medicine are all those therapies not taught in conventional medical school. Means Dr. Shikhar is also MBBS, Dr. Gurdeep Shetty is also MBBS, I am also MBBS. What we were not taught in our conventional teaching, which comes under alternative medicine and complementary medicine, adjunctive therapy added as after major conventional treatment, like support system or anything, that is complementary medicine. But when we talk about this, especially in today's era, when we talk about any alternative medicine, people started thinking that it's an emotional pendulum. Means only diet correction, only yoga, only naturopath can cure cancer. Another side of the pendulum, ego side of the pendulum, we as a modern medicine doctor, we think nothing can work. There's another side of the pendulum. Therefore, we have to come to a common point, balance the two of the things, knowing both the part of the system. And that answer is available only with the integrative medicine, which includes idea and thought beyond the scope of conventional allopathic medicine, which neither rejects conventional therapy nor accept alternative uncritically. There are 4 principles of integrative medicine, that is natural healing power of the organism, whole person medicine, importance of lifestyle, and critical role of doctor-patient relationship, which we all agree that today we are fitting this concept. People are surprised, as Dr. Shikhar rightly said, I'm a cancer surgeon. Then why we are talking about the prevention and going outside the operation theater and working in the public? The doctor means the actual word doctor was derived from Latin word dossier. The actual meaning of doctor was teacher, shikshak tha. Today, role reversal of doctor has been there because of corporatization of the healthcare system. When we talk about the healthcare system, the first word is health, swasthya. Our modern medicine describes not mere absence of disease, but physical, mental, and social well-being is a complete health package. In Ayurveda, Sushrut Samhita, सूत्र 15 10वें अध्याय में है, सम दोषा समग्निस्ता सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब सारी चीजों की सम अवस्था में हो जाना ही स्वास्थ्य है। स्व स्थिते इति स्वास्थ्य। अगर इसको कर देंगे तो कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, ये आपके सामने नहीं आएगी। When we talk about the health, there are 2 concepts. Lifespan means date of birth, when a child was born, till the last date, it is lifespan. Health span, out of that lifespan, how many years that person remains without disease or without pills. Means life without pills, completely healthy,
Swasthite, that is health span. Our aim should be health span should be equal to the lifespan, means life without pills. These are the common diseases which we consider disease. This is जीवन शैली संबंधित बीमारियां, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलाइपिडीमिया, हार्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, dementia, and emperor of all the maladies, that is cancer. My simple question to all the doctors, are those diseases disease or just a manifestation of something else? We consider them disease because big pharma, big hospitals, big doctors, and government will not tell you. They will tell just these diseases are disease. They will not tell you these diseases are not disease. Why? It's a doctors and government tool to fool the people. If they teach you what is the actual disease, obviously everything will fall under healthcare, that is wellness program. And today you will be surprised how many of doctors are healthy. They are taking hypertensive, anti-hypertensive pills, anti-diabetic pills, thyroid medicines, becoming obese, maybe polycystic ovarian disease, dementia, Alzheimer's. There are so many things. And ultimately, this system is being labeled as sick care because sick doctors, sick patients, sick public, and sick government are leading this system. It cannot be healthcare system. Which is common is not normal. You can see in the park, everybody today in the era of e-rickshaw, even e-rickshaw puller, they are obese. Just imagine, this is metabolic syndrome. The root cause for everything, dyslipidemia, hypertension, diabetes, cancer, and all the kind of problem we see. The actual disease are these 8 diseases, but nobody will tell you because CDC, they don't have coding for these diseases. What are those? Glycation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, insulin resistance, membrane instability, inflammation, epigenetics, and autophagy. If you go to any of the non-communicable disease, root of these 8 are combinations, in combination 2, 3, 4 kind of abnormality must be at the level of molecular health. And why doctors and government are not telling these are diseases? Because these diseases are not druggable. These diseases are foodable. We can prevent it, we can stop it, we can correct it with changes in lifestyle and especially food. But why this has become corporatization is the only reason. When you can pay less for the wellness, we are paying more for the sickness. And today, renaming is the need of the era. We call hospital as healthcare. We should rename it as sick care. We call Ministry of Health and Family Welfare. This should be renamed as Ministry of Sick and Unfair. We borrow by giving premium to health insurance, which doesn't cover health, cover disease. That should be labeled as disease insurance now. This change is needed. And need of the era is functional medicine. Treating the system, not the symptoms. And that too, personalized medicine is the real answer. Why I'm talking about, if you consider cancer, as Dr. Gurdeep rightly said, only 5 to 10% cancers are genetic cancers. Just see the pie chart, 90 to 95% regions behind cancer is in your environment. And out of that, 30-35% is diet. And nobody in a modern hospital or modern doctors is talking about the diet because in an entire curriculum of MBBS, 5 years, only 19.6 hours have been taught about nutrition and rest nobody knows. Very unlikely doctor like Shikha Sharma, who is having background of MBBS and dealing with nutrition, because nutritionists, they don't understand medical science, and we people from modern medicine, we don't understand nutritional science. Now cancer has been labeled as modern epidemic. Cancer can happen to anyone, be it celebrity, any caste, creed, religion, cult, culture, socioeconomic status. Therefore, prevention is always better than cure. How can we prevent it? हमारे शास्त्रों में लिखा है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा. 5 elements of life. Go to any of the system. These 5 elements directly or indirectly responsible for our health, as well as abnormality in these 5 elements can lead to disease. And the best example of Hindu Chhath Puja is the worship of all those 5 elements only. Full stop. No messenger, no pandit,
no Murti Puja, no Mandir, nothing. Just worshipping the five elements of life. And my strategy is to keep the people healthy away from cancer is MMMS. Meal, movement, mind, stuff, and sleep. Only 4 pillars of health I consider. If you take these 4 pillars of health, you will not suffer from any of the non-communicable diseases, or chances, even if you are genetically prone, will be very less. First M is meal. And when we talk about the meal, consider food science and nutrition science. Remember, food science and nutrition science are entirely different. If we call food science, means whatever has been grown in the farm, from that area coming that stuff up to the lip is food science. What has been done to that element, how grown, how processed, everything. Nutritional science, the moment we put anything to eat from the lip area to the molecular level, that is nutrition science. As a doctor, we should understand both the things. And my understanding is today, what we call food is not food. If you consider the definition of Oxford University, what is food? Any substrate which helps either in burning or growth. Burning is mitochondrial, that is ATP production, and growth, any kind of cellular growth, that is food. But you'll come to know, whatever we are talking, those are not food. And हमारे शास्त्रों में डाइट के लिए कहा गया है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती. पहले भिक्षा में खाना दिया जाता था, भोजन जो खाने योग्य हो. आज अगर रेड लाइट पे आपकी गाड़ी खड़ी है, आप भोजन देंगे, पैसे नहीं देंगे तो कोई आपसे लेने को भी तैयार नहीं है. Why this has become? Because of fast food culture. And personally, I call it nutritional poverty. Because when you eat or drink this kind of food, nutritionally, you are gaining nothing. At the same time, it is actually hampering burning, means reducing ATP production, as well as hampering growth of the children, especially prepubertal. Why we are calling this processed and ultra processed food? They don't have no fiber or low fiber. That's the only thing we can increase the shelf life of that food. High sugar content, especially fructose, added fructose, which disturb gut microbiome, means loss of fiber and high sugar content disturbing gut microbiome. Gut microbiome considered as a kind of second brain, then ultimately leading to alteration in mood by disturbing gut-mind axis. Today you can see why children are so irritable. Attention deficit disorder is becoming common. It inhibits mitochondrial function. What we are talking about, ATP production. Multiple insulin spike, directly and indirectly responsible for fatty liver, diabetes, polycystic ovarian disease, Alzheimer's disease, and cancer, and obesity. Processed and ultra-processed food giving this only to the community. We call it junk food, fast food. Junk means kachara. Junk mail, not useful for us. Then why we are putting this kind of junk food inside our stomach, which is leading to metabolic syndrome? Modern medicine says acidic and fatty food can lead to acidity, heartburn, heart disease, and cancer. श्रीमद् भगवत गीता 17वें अध्याय में लिखा है, कटो अम्ल लवण अत्युक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिनी आहार राज ससेष्ठा दुख शोकमया प्रदा. बहुत कड़वा, बहुत अम्ल मतलब एसिडिक, लवण मीन्स सॉल्टी, बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा तीखा खाने से दुख और शोक की प्राप्ति होती है. चाणक्य ने कहा था, भोजन भोजन शक्ति चरति शक्ति विरांगना विभवो दान शक्ति स नाल्पस्य तपसा फलम. किसी व्यक्ति को सुपाच्य भोजन मिल जाए, उसको पचाने की शक्ति हो, अपनी स्त्री को सुख रख सके और दान देने की शक्ति हो, किसी छोटी तपस्या के यह फल नहीं है. बाइबल में डिस्क्राइब किया गया था, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम. गॉड ने जब क्रिएट किया तो एडम को कहा कि एडन गार्डन का फ्रूट्स मत खाना. गॉड ने कहा एडम को कि अपने कोई संगनी साथी दोस्त बनाओ. एडम वाज अनएबल टू क्रिएट. देन गॉड क्रिएटेड वुमेन एज पर बाइबल. दिस इज जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27. ये मेरा नहीं कहा हुआ है. Then God created Eve out of rib and flesh of Adam. That's the reason they call it woman, derived from man. Then Eve, Adam को समझा के एडन गार्डन का एप्पल खिलाया, बिकॉज एडम को पता था कि ये नहीं खाना है. That got stuck in the throat. इसलिए मेल का यहाँ कहा जाता है एडम्स एप्पल. ये जेनेसिस में डिस्क्रिप्शन है, may not be scientific. Why we are running behind the fast food of the Western world?
इफ यू सी द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर स्टेट की अपनी एक खास व्यंजन की विविधताएं हैं. इफ यू स्टिक टू दैट क्लासिकल इंडियन फूड, you'll get every nutrients, anti-cancer property, and you will not be any kind of disease if you don't go for fast food. Our Indian food have a high fiber food, rich in lycopene, anthocyanin, and multiple pigments and antioxidant, which is actually cancer prevention. But when we are talking about the fresh fruits and vegetable, Dr. Shikhar will agree, we did kind of program at the Yamuna Khadar Sabjiyan, जो जहरीली थी, उसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, विच इज कैंसर फॉर्मिंग हेवी मेटल्स था. तो इन पॉइजनस वेजिटेबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. वेजिटेबल मीन्स प्योरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. अब खाने के बाद है कि कब खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए. भूख और वासना, वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड लस्ट. इसके लिए सिंपली याद है कि भूख जब लगी हो तो कैसे अब समझेंगे कि अब मुझे खाना खाना है. भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात. अगर इस तरह की भूख लगी है तभी खाना खाएं, अन्यथा ये वासना है. आप गुजर रहे थे, समोसे की खुशबू आई, पिज्जा की खुशबू आई, आपने उठा खा लिया. ओवर ईटिंग दैट विल लीड टू ओबेसिटी एंड कैंसर. ईटिंग विंडो, कब खाना है? बिफोर सनसेट यू फिनिश लास्ट मील बिफोर सनसेट. At least 4 hours before bed must be there. And first meal should be 4 hours after wake up. Remember, liver is mother of all the organs. We have to give liver enough time to rest. जब आप खाना खा लेंगे, उसको डाइजेस्ट करके, लिवर जैसे माँ होती है घर की, बत्ती बंद करेगी, घर में ताला दरवाजे खिड़कियां सारा देख के चेक करके सोने जाएगी. जब लिवर सोने जाता है, उसको मिनिमम 5 घंटे का रेस्ट विदाउट फूड आपका स्टमक इंटेस्टिन चाहिए. अगर ये देंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे. वाई एम टॉकिंग अबाउट शुद्ध भारतीय भोजन? ज्यादा फाइबर होता है, एंटी कैंसर है. हरी सब्जी एवं फल, एंटी कैंसर. हल्दी, इसका मेरा इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुआ है. P53 हाइपरमिथाइलेशन, जो सेल के अंदर एब्नॉर्मलिटी उसको चेंज करता है, एंटी कैंसर. अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन औषधि का काम करता है, एंटी कैंसर है. My formula is, rather than going for KFC, go for KFS. That is, keep food simple. How? रीजनल खाएं, सीजनल खाएं. पहला सूत्र, आपके क्षेत्र में जो भी साग सब्जी फल फूल होते हैं वही खाएं, और जिस ऋतु में, जिस सीजन में ये सब्जियां फल हो रहे हैं वही खाएं. प्रिजर्व ना खाएं. नेचुरली कलर्ड खाएं. प्राकृतिक रूप से जो रंगीन सब्जियां, रंगीन फल हैं वही खाएं. कॉम्बो ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्ब, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सारा चाहिए आपको. होममेड एंड फ्रेश फूड खाएं. एंड बैक टू बेसिक्स, B2B, दैट इज होलसम ग्रेन फॉर होलसम हेल्थ. अगर ये करते हैं तो फाइबर और कार्ब का रेशियो किसी भी आपके ग्रेन्स में एप्रोप्रिएट मिलेगा, न कि KFC में मिलेगा. इसलिए जनरेट योर ओन ब्रांड, दैट इज KFS, कीप फूड सिंपल. गैस्ट्रोनोमिक जर्नी, मैक्सिमम लोग जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूं तो पूछते हैं कि बच्चे नहीं मानते हैं. पहला सूत्र, इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन रेसिपी डिजाइन. उनसे पूछिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, किस तरह से हम क्लासिकल रॉ रीजनल फूड को हम घर में तैयार करें. लर्न टू से नो. जैसे कहीं जाते हैं, मिठाई आती है, स्वीट्स, फूड, स्पेशली व्हेन यू आर फुल, लर्न टू से नो. मना करें, मैं नहीं खाऊंगा, ओवर ईटिंग है. मेक अ फूड डायरी. स्टार्टिंग में महीने 2 महीने आपको दिक्कत होगी, एक फूड डायरी बनाएं कि आपने क्या खाया, कब खाया, कितना खाया. व्हेन यू कम बैक आफ्टर 1 month, यू विल बी सरप्राइज कि आपके चेंजेस कैसे ट्रांजिशन हो. दैट इज, आई कॉल इट गैस्ट्रोनॉमिक जर्नी. सप्लीमेंट फूड, नॉट फूड सप्लीमेंट. आजकल फूड सप्लीमेंट का बड़ा सिस्टम चल गया है कि ओमेगा 3 दिस दैट. सप्लीमेंट फूड लें, ना कि फूड सप्लीमेंट की जरूरत है. रीड द लेवल, मेक हैबिट. कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, उस पर जो लेवल लगा हो उसको पढ़ें. हैप्पी ईटिंग वर्सेस हेडोनिस्टिक ईटिंग. हेडोनिस्टिक ईटिंग, सुखवाद के लिए खाना विच रिलीज डोपामिन. हैप्पी ईटिंग मतलब भूख लगी तब खाना. मिंडोइन मेथड वर्सेस सेक्सी सॉल्यूशन. अगर ये सब आप अपने जीवन में उतारते हैं, गैस्ट्रोनॉमिक जर्नी विल बी स्मूथ. ब्राजील ने क्लासिफिकेशन दिया प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 3 एंड टाइप 4 को प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बताया गया है. which has been processed means shelf life has been increased, but self life, इंसान की खुद की लाइफ कम कर दी. इसको सिंपल, अब लोग समझ रहे हैं क्या खाना नहीं खाना है. भारतीय फॉर्मूला देता हूं. 3 प्रकार के रसोई हैं. पहला, भगवान की रसोई, मतलब प्राकृतिक चीजें एज इट इज आप खा सकती हैं. ये नॉर्मल भगवान की रसोई आपको स्वस्थ रखेगा, बीमार नहीं करेगा. दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो भारतीय रसोई में बन रही हो,
ये ताजा खाएं, इंसान की रसोई, ये भी आपको स्वस्थ रखेगी। और तीसरा, शैतान की रसोई। जितने लाल पीले नीले डब्बे और बोर्ड लगा के या पैक्ड फूड, डॉक्टर गुरदीप भी डिस्कस कर रहे थे, ऐप बेस्ड फूड रात में मंगा खाते हैं, ये शैतान की रसोई है। कोई इंसान आपके लिए, आपके भले के लिए खाना नहीं बना रहा है। नंबर 1, क्वालिटी खराब, प्लास्टिक का पैकेट, गर्म खाना उसमें पैक हुआ, बिस्फेनॉल या थैलेट्स लीच किया, आपने सर्कैडियन रिदम ब्रेक किया, रात को खाना खाया, फ्रिज में रखा, बचे खाने को फिर गर्म करके खाया। एवरीथिंग इज नथिंग, मकर जाल है कैंसर का, इसमें और कुछ नहीं है। My formula is feed the gut, protect the liver, and support the brain. If you really want to be disease-free life, feed the gut, protect the liver, and support the brain. कैसे? Feed the gut means give fiber to your gut microbiome. प्रोटेक्ट द लिवर, लिवर पे सडन ग्लूकोज फ्रुक्टोज का लोड ना दें, फैटी लिवर होगा। एंड सपोर्ट द ब्रेन, अगर गट माइक्रोबायोम ठीक हो रहेगा, गट के अंदर सेरोटोनिन बनेगा आपके माइक्रोबायोम से, और उसके बाद ब्रेन को मिलेगा, ब्रेन हैप्पी रहेगा, आपको कहेगा थैंक यू। कैसे कर सकते हैं इसको? रॉ खाएं, रियल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, ईटिंग विंडो लेस देन 8 आवर्स कर दें, लो और नो प्रोसेस्ड कार्ब खाएं, रीडिफाइन योर फूड rather than refined food. फर्स्ट फाइबर लें, देन प्रोटीन फैट लें, देन अगर खाना है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब छोटा सा अमाउंट 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट लें, जैसे प्योर ब्राउन राइस या कंप्लीट ग्रेन्स मिलेट्स, इसको लें 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। देन ओमेगा 3 सप्लीमेंट, बेस्ट सोर्सेज एल्गी एंड वाइल्ड फिश, उससे मिल सकता है। एंड नो हेडोनिक ईटिंग, अगर ये करते हैं यू विल गेट फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर एंड सपोर्ट द ब्रेन। प्लांट बेस्ड फूड ऑलवेज फाइबर आपको देगा, प्रोटीन फैट आपके खाने में चाहिए। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, जो साउथ कोरिया का बड़ा पॉपुलर है किमची, जबकि इंडिया में बहुत सारे हर स्टेट में कुछ ना कुछ फर्मेंटेड वेजिटेबल का एक कल्चर था जो लोग शहरों में आज भूल चुके हैं। एंड होलसम फूड फॉर होलसम हेल्थ। लोग सोचते हैं इज इट पॉसिबल इन सिटी लाइक एनसीआर और दिल्ली? यस, डायरेक्ट फार्मर परचेज। आप किसानों से 100 किलोमीटर के अंदर बात कर लें, वो आपके लिए फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड के बिना उगाएंगे। 10 फैमिली जमा हो, महीने में एक बार जाएं, पिकनिक भी करें, 10 फैमिली के लिए आपका सामान आ जाएगा, घर में आटा गेहूं चावल सब रखें, तैयार हो जाएगा। ईदर पे द फार्मर और पे द डॉक्टर्स। आई एम बोथ, फार्मर एज वेल एज डॉक्टर, चॉइस इज योर्स। क्षिति के बाद जल पे आते हैं। जल ग्रहण निःशुल्क, पहले माना जाता था वाटर फ्री है, शुद्ध है, डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए फॉर्मूला था कि बॉडी वेट का 1/20वां हिस्सा आप पानी लें। लेकिन आज क्या हो गया? मैं ऐसे विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, बड़ी छोटी जगह पैदा हुआ, गंगा के तट पे घर था, बागीचा था, गाय रहती थी। तभी एक बार दिल्ली में आ रहा था, फ्लाइट से देख रहा था कि मेरा घर कहाँ होगा, तो सिर्फ मुझे कंक्रीट जंगल बिल्डिंगें दिखी, लाइट दिखी, ना कोई जंगल ना कुछ। उसी पे मैंने एक रचना लिखी थी, 4 पंक्तियां बीच की हैं। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, दिल्ली। ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है, नीर बंद था, पानी बॉटल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा। ना थी हरियाली यहाँ, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया। पानी पीने का समुचित समय क्या है? सुबह जगने के बाद पिए 2 गिलास, स्नान से पहले इनर कोर टेम्परेचर डाउन होगा, दोपहर के खाने से पहले पी लें, खाने के 2 घंटे बाद न पी लें, टू कीप द डाइजेस्टिव जूसेज वर्किंग। सूर्यास्त के समय पिए और सोने से पहले पिए। अगर इतना पिएंगे 3 से 4 लीटर पर डे पानी का आपका कंजम्पशन हो जाएगा। कुरान में एक आयत है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, फिल हाफ स्टमक विद फूड, 1 क्वार्टर विद वाटर एंड लीव 1 क्वार्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर। लेकिन आज इंसान खाना खाता है गले तक, कहाँ पानी कहाँ एयर मूवमेंट की जगह बचेगी। गुटखा contains all things related to cancer. Gutka is more common than cigarette in India, leading to reduced mouth opening, cancer. Cigarette simply says we kill. जितने लोगों से मैंने पूछा, अपने अनुभव पे मैंने स्लाइड डाली, किसी ने बोला कि मैं किक के लिए लेता हूं, बट दे आर नॉट अवेयर दैट किकिंग देयर ओन लाइव्स। किसी ने कहा एक्टिव रहने के लिए लेता हूं, 2 minutes ऑफ योगिक स्ट्रेचिंग इन द ऑफिस कैन कीप यू मोर एक्टिव देन सिगरेट। एंड कुछ लोगों ने कहा स्टाइल के लिए, जो इनको समझ के सेलिब्रिटी समझते हैं, दे आर नॉट योर सेलिब्रिटी, ये आप बीमार कर रहे हैं आपको। सिगरेट में 365 दिन का सेल चलता है, बाई सिगरेट
just for kick, but you are getting 4,000 chemical. Out of that 4,070 chemicals are cancer forming. Additionally आपको हार्ट डिजीज, इम्पोर्टेंस और बहुत सारी प्रॉब्लम तो होगी। अल्कोहल, रंगीन पानी, जिसको सिंपली कहते हैं शराब, हाला, मदिरा। जितनों से मैंने पूछा 3 चीजों के लिए लिया, आई एम द किंग, ऑल इज वेल, नो टेंशन, बिंदास है भाई। लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला जो रचना लिखी, आप तो मना कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा था मधुशाला में? मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूं हाला, भरता हूं इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उन्होंने कभी नहीं शराब की बात कही थी। गांधी जी ने कहा था अल्कोहल इज नॉट द आंसर टू लाइफ क्वेश्चन। तो विजय माल्या ने जब किंगफिशर लॉन्च किया तो उन्होंने लिखा था गांधी जी को कोट करते हुए, एटलीस्ट इट हेल्प्स यू टू फॉरगेट द क्वेश्चन। तो मैंने दोनों को कोट करके लिखा, at least you can invest that time in search for the answer. Choice is yours. गांधी जी डिमोनेटाइजेशन के बाद भी हमारे नोट पे हैं, विजय माल्या आपके नोट लेके भागे हुए हैं। चॉइस किसको आप फॉलो करेंगे? मानव का विकास, ऐसा डार्विन थ्योरी मानता है कि चौपाया से दोपाया हुआ, लेकिन आज फिर मनुष्य दोपाया से उसको वैशाखी के तौर पे तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट की जरूरत होने लगी। एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक यू आर ईदर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। देयरफॉर जब भी कोई निवाला के लिए उठाएं तो ये याद रखें। सारांश में क्षिति जल का खाना पीना क्या खाना है? शुद्ध भारतीय भोजन, हरी सब्जियां, फल, खा ना फास्ट फूड, पैक्ड चिप्स और ये सारी चीजें, पी ना शराब, सिगरेट, बीड़ी। फर्स्ट एम। देन सेकेंड एम इज मूवमेंट, मतलब एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला मैं देता हूं फार्ब, FARB, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। अगर इसको करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ रिकमेंडेशन कि कितने देर करना चाहिए एक्सरसाइज, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन कोई आपका जिम में बाइसेप्स बनवा रहा है, कोई ट्राइसेप्स, कोई पेक मेजर बनवा रहा है। अगर इन सबको फार्म टेक्नोलॉजी को करें तो आंसर इज योगासना। योगासना कैन गिव यू एवरीथिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। इसलिए कंप्लीट हेल्थ के लिए योगासन इज द बेस्ट आंसर। एंड डेविड कॉल्टर अमेरिकन एनाटमिस्ट है, इंडिया आया, अष्टांग योग सीखा, उसने किताब लिखी एनाटमी ऑफ हठ योगा। और हमारे इंडियंस को ये पता नहीं है इसने किस लेवल की किताब लिख दी, प्रोप्रेसेप्शन से लेकर सारा कुछ एक एक योगिक पोस्चर का डिस्क्राइब किया इसमें। जो लोग कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, छूट जाता है, रिमेंबर गुड हैबिट्स आर एज एडिक्टिव एज बैड हैबिट्स एंड लॉट मोर रिवॉर्डिंग। चॉइस इज योर्स। मोटापा, इंसान यंग एज में रहता है, बिल्कुल सीधा होता है, बाद में उसका मध्य प्रदेश मतलब पेट का हिस्सा बड़ा होता जाता है, उत्तर प्रदेश मतलब दिमाग खाली होता है, और दक्षिण प्रदेश मतलब घुटना टूटने लगता है, फिर उसको हम सर्जन बदल देते हैं। मोटापा का डेफिनेशन बहुत सारा है कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए। नेवर, दिल्ली में ऑन रिकॉर्ड 30% से ज्यादा लोग मोटे हो चुके हैं, और ओबेसिटी इस कदर बढ़ रही कि हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि इस तरह की ट्रॉली बनाया जाए जो इंसान के टमी को लेके चल सके। ऐसा हुआ क्यों? लाइफ कंपास अगर देखेंगे तो दिल्ली वालों की लाइफ 3M में उलझ के रह गई है। घर, ऑफिस, ऑफिस, घर, और इसके बीच में 3M है, मॉल, मूवी, मदिरा। तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाता है जब दिनचर्या ही खराब हो गई। जब मेरे दादाजी का समय था, लेफ्ट स्लाइड में आप देखें, सूरज की पहली किरण निकल रही होती, दादाजी मॉर्निंग वॉक करके अपने दिनचर्या को खत्म करके लौट रहे होते थे। आज सुबह 10 बजे की कहानी है, बाप भी सो रहा है, बेटा भी सो रहा है। ये बो एंड एरो ह्यूमनॉइड एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि आज का इंसान कैसा हो गया है, जैसे उसकी टमी निकल गई, स्पाज्म में इलियोश्वास मसल का हो गया, ओबेसिटी, काइफोसिस, सॉरी लॉर्डोसिस, और स्टिफ बैक। ये पूरा आप देखेंगे तो एक जैसे धनुष में तीर लगाया हुआ है। तो अगर ऐसा व्यक्ति बो एंड एरो ह्यूमनॉइड दिखे तो बेसिकली उसकी तीर छूटने वाली है, मतलब जीवन से वो निकलने वाला है। इसको करेक्ट करके हमें स्ट्रेट ह्यूमन होमोसेपियंस इरेक्टस बनाना है। फैट इज नॉट फैट, 3 डिपो ऑफ फैट। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है कैंसर का और हार्ट डिजीज का। 3 डिपो है, 3 गोदाम है फैट का, सबक्यूटेनियस फैट, विसरल फैट एंड फैटी लिवर, दैट इज फैट इन द लिवर। सबक्यूटेनियस फैट मोर देन 10 kg चाहिए टू मेक यू सिक, मतलब सबक्यूटेनियस फैट एपरेंटली उतना नुकसानदायक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स पॉइंट से नहीं है जितना लोग सोचते हैं। विसरल फैट इज मोर डेंजरस, मोर देन 2.5 kg कैन मेक यू डिजीज इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीज एंड कैंसर। एंड विसरल फैट के पीछे जो वजह है, फॉर्मूला इज सासू,
स्ट्रेस, अपनी सासू माँ वाला नहीं, स्ट्रेस दैट इज क्रोनिक कॉर्टिसोल लीडिंग टू विसरल फैट, अल्कोहल, स्लीप डिप्रिवेशन एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ऐसे लोगों को पफी फेस, लव हैंडल, पॉट वेली, नेक में ब्लैक लाइनिंग एंड वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा। विसरल फैट मोर प्रोन टू कैंसर। मायोस्टिटोसिस, मसल के बीच में फैट जमा हो जाना, इट बिहेव्स लाइक विसरल फैट, अगेन लीडिंग टू कैंसर। फैट इज नॉट फैट, व्हाई आई एम सेइंग वन कॉन्सेप्ट इज टॉफी, थिन ऑन द आउटसाइड एंड फैट द इनसाइड। एशियन में ज्यादा कॉमन है, इंडियन चाइनीज में, मतलब सिर्फ पेट निकला होगा, ऊपर से दुबला पतला होगा। 40 यूरोपियन में ज्यादा कॉमन है, फैट फ्रॉम आउटसाइड एंड थिन इनसाइड, विसरल फैट कम हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को रिस्क कम है एज कंपेयर टू टॉफी। ओबेसिटी का रीजन HFCSS, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, हाई इन कैलोरी, कैलोरी डेंस फूड, ये आपके ओबेसिटी का कारण बना हुआ है। कैलोरी इज नॉट कैलोरी, जो बोन कैलोरीमीटर में डालते हैं, ऑल कैलोरी आर नॉट कैलोरी। स्पेशली दिल्ली वाले कहते हैं मैं तो खाना कम खाता हूं फिर भी मोटा हो रहा हूं। ओबेसोजेंस, ये आपके इर्द गिर्द वातावरण का प्रदूषण से लेके नॉन स्टिक तवे में जो केमिकल है, जिसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं, प्यूफा एंड पोफा, ये आपको ओबेसोजेंस है, इसके कारण मोटापा बढ़ रहा है। सर्टेन हिडन एंड फैक्ट लाइक प्लास्टिक हमारे वातावरण में चारों तरफ हो गया है, जिसको एंटीक करके आपने रख दिया है अलमीरा में, इसको निकालिए आज, पीतल के बर्तन को, तांबे के बर्तन को, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स है एंटर एवरीवेयर लीडिंग टू इम्पोर्टेंस, हार्ट डिजीज एंड कैंसर। Bisphenol A and phthalates are mainly responsible for low sperm count, thyroid problem and cancer in females. Microwave study चल रही है, not very clear, but trend towards increasing risk of cancer. Insecticide and fertilizers more responsible for cancer. Fruit ripener like carbide and ethanol, हम लोग टीवी पे काफी प्रोग्राम इस पे कर चुके हैं। ऑक्सीटोसिन, जो सब्जियां बड़ी कर दी जाती है ओवरनाइट। थर्ड इमेज माइंड स्टफ। माइंड स्टफ का हिंदी है चित्त। महर्षि पतंजलि से पूछा कि गुरुजी योग है क्या, तो उन्होंने एक सूत्र दूसरे सूत्र में ही कह दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। माइंड एबनॉर्मल माइंड स्टफ आर डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर डिस्टर्बिंग माइंड स्टफ ही मोबाइल। पहले क्या था, इंसान चलित था, फोन स्थगित था, आज इंसान स्थगित हो गया, फोन चलित हो गया। ऑफिस में फोन, शौचालय में फोन, शयन कक्ष में फोन, गर्भवती महिलाओं के पेट पर फोन, वाहन चलाते समय फोन, मंदिर में फोन। क्या हुआ, नजदीकियां बढ़ी है दूरियां। राइट साइड में देखिए स्लाइड है, जिसमें फोन नहीं था, सब लोग बैठ के अपने में बात करते थे, आज सब साथ बैठे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया पे लगे हुए हैं, काल्पनिक दुनिया में हो रहे हैं रिश्ते खराब। रात में देख लिया ऑनलाइन है, आपने जवाब नहीं दिया, हो गए रिश्ते खराब। सर्जन्स अनहैप्पीनेस, मैंने कहा नोमो, ऑपरेशन करके सर्जन निकलता है, सर्जन रूम में बैठ के वो पूरे टाइम या तो स्टॉक एक्सचेंज पे, नेटफ्लिक्स पे या ऑनलाइन शॉपिंग में लगा रहता है। मैं कहता हूँ नोमो, नमो न पॉलिटिकल ना समझें, नो मोबाइल फोन फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। जब ऐसे काम से निकल रहे हैं जहां एनर्जी रस आपका काफी है, थोड़ी देर के लिए आप नो मोबाइल जोन में जाएं। डोपामिन बड़ी अच्छी किताब है, जो पढ़ना चाहें पढ़ें। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, स्क्रीन के इस्तेमाल से डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में, जो जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोड, ये और आपको एडिक्ट बनाता रहेगा। इट इमिट्स रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स विच लीड्स टू चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, दैट इज ब्रेन ट्यूमर। कई इस पे भी कार्यक्रम इस पे हुए। स्ट्रेस, क्रोध, एंजाइटी, जेलस, रिवेंज, these are common, but human cannot be alive without stress. How stress is related to obesity? Because of cortisol. First and foremost reason for stress, पूछ। कहीं जाते हैं, किस तरह से पूछा गया, कितनी इज्जत मिली। एंड सेकेंड इज पूछ, भैंस निकल गई, उसकी पूंछ अटक गई, मतलब अहंकार उसका वहीं अटक गया। इंसान आज स्ट्रेस में इस कारण है। कितने व्यक्ति हैं जो आज स्वच्छंद, उन्मुक्त और तनाव रहित वैसे रहते हैं जैसे बचपन में थे। फियर फैक्टर, अनदर रीजन फॉर स्ट्रेस। या तो इंसान भय में है, या निर्भय दुस्साहसी हो चुका है। अभय की स्थिति कितने में है, हंसना मना है। ये मेरे दोस्त हैं, बड़े कारोबारी हैं, इन्होंने हंसना बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो बोला कि हंस के बात करते हैं तो लोग काम नहीं करते हैं ऑफिस में। और डॉक्टर शिखा के मैं ऑफिस गया हूँ, पूरे टाइम हंसते रहती हैं, इनका काम तब भी चलता है, मुझे यही लगता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, अर्था भवंती गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि न आयति गतम तु नवयौवनम। अर्थ मतलब धन, आएगा चला जाएगा, दोबारा प्राप्त कर लेंगे। पुनः कदापि न आयति, दोबारा नहीं आएगा। गतम तु नवयौवनम, जो अवस्था मिली है इसको जीना शुरू करें। ओशो ने कहा था, हंसना एक महाऔषधि है। हंसने के
व्यक्तिगत फायदे शारीरिक, हेड एंड नेक की जितनी मसल से मांसपेशियां इसकी एक्सरसाइज होगी, इसका कोई डंबल कोई ट्रेडमिल नहीं बना है, आपके चेहरे पे झुर्रियां देर से आएगी। मानसिक फायदे, न्यूरोसाइंस में रिसर्च पब्लिश हुआ कि हंसना, जो स्पॉन्टेनियस हंसते हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, एंजाइटी और जेलस कम रहता है आपका। सामाजिक फायदे, हंस के मिलेंगे लोगों से, लोग आपके दोस्त बनते जाएंगे। और पारंपरिक फायदे, माना जाता है हंसने का जहां माहौल होता है वहां धन धान सुख सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो हंस के देखें, एक हफ्ते अगर बुरा लगेगा तो हंसना बंद कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे हंसने का फायदा नहीं है। मेरे घर के पीछे एक क्लब है, पार्क है, उसमें लाफ्टर क्लब चलाते हैं। ये 6:50 से 7 बजे तक हंसते हैं, उसके बाद हंसना बंद करते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, तो बताया कि ऑफिस में अगर हंसता हूं तो सबॉर्डिनेट काम नहीं करते, घर पे हंसता लौटता हूं तो बीवी पूछती है कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो इस हंसने का साइंस से कोई फायदा नहीं है। मिड लाइफ क्राइसिस वर्सेस 4 फेजेज। अब मिड लाइफ क्राइसिस ये कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, खास करके 40, 45, 50 जो अचीव कर लेते हैं उनमें। हमारे इसमें लिखा गया था शास्त्रों में 4 अवस्था है जीने की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अगर इन अवस्थाओं को हम मेंटली एक्सेप्ट करें तो मिड लाइफ क्राइसिस की प्रॉब्लम सच में नहीं आएगी। लव योर सेल्फ, स्पेशली फीमेल से मैं कहूंगा, पहले अपने आप से मोहब्बत करें। यू विल एमिट पॉजिटिव ऑरा, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू, डोंट एक्सपेक्ट लव फ्रॉम अदर्स। बी स्पॉन्टेनियस, ये बहुत पुरानी तस्वीर है। मैं बंगाल बुलाया था एक लेक्चर के लिए गायत्री परिवार ने, तो चारा काटने की मशीन दिखी, मैं काटने लगा। जो चीजें आपको करने की इच्छा हो कर डालिए, अगर उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। हॉबी, मस्ट डेवलप हॉबी, स्पेयर टाइम एक्टिविटी, go to the hospital, clean the society, do some kind of community gardening, go to the hospital, talk to the patients, socialize with your friends, जिनसे मन मिलता हो उनके साथ बैठें, अच्छी बातचीत करें। फॉरगिवनेस, कहा गया क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। फॉरगिवनेस की आदत डालें, दैट विल डिक्रीज योर स्ट्रेस। महर्षि वेदव्यास से पूछा गया, गुरुजी 18 पुराण लिख दिए कि इसका सारांश क्या है। उन्होंने कहा, अष्टादशे पुराणेषु व्यास न वचनद वयम परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को अगर परोपकार करते हो तो पुण्य है, दूसरों को पीड़ा देते हो पाप है। बस इतना ही सारांश में उन्होंने कह दिया। डिकोड योर एंगर, रिमेंबर एंगर इज नॉट अ प्राइमरी emotion, is always a pillar that rises from the floor of humiliation. Atma-sanyam, develop self-control. Introspection, before going to sleep, must do some kind of introspection. क्या क्या आज हुआ, क्या नहीं हुआ। पहले गिल्ट और डिस्पेयर, अब हो गया। पहले होप और हैप्पीनेस, डॉक्टर शिखा को याद होगा, डॉक्टर गुरदीप को याद होगा, हम लोग इस समय कैसेट आया करता था, रील उलझ जाती थी, पेंसिल लेके घंटों सुलझाते रहते थे विद होप कि किशोर के गाने फिर से बजेंगे, रफी के गाने बजेंगे, तो हैप्पीनेस। आज गिल्ट और डिस्पेयर में इंसान जी रहा है, क्योंकि इस तरह की चीजों में जो बेसिक खुशी थी वो खत्म हो गई, सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो गई। जोहारी विंडो एक है जिसमें राइट लोअर कॉर्नर अननोन सेल्फ, इसको एक्सप्लोर करें, विच इज नॉट योर पोटेंशियल पावर, नॉट नोन टू यू नॉट नोन टू द वर्ल्ड, इसको ओपन करें। वर्तमान में जीना सीखे। वर्तमान कहा जाता है भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ तक जाने की बिल्कुल सहज, तरल और सरल अवस्था को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान में जीना सीखें। लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं हर समय कहता हूं, समय बीतता है या हम बीत जाते हैं। जरा सोचिएगा, समय नहीं बीतता है, हम बीत जाते हैं। अगर हम वर्तमान में जीना चालू करें, विच इज मोस्ट फ्लूइड एंड डायनेमिक स्टेट, तो हम समय से सिंक हो जाएंगे। जापान का एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, वही काम करें, वेयर योर पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन मीट, यू विल रीच द स्टेट ऑफ इकिगाई। इचिगो इची, अनदर कॉन्सेप्ट फ्रॉम जापान, आर्ट ऑफ मेकिंग मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। जिस मोमेंट में है उसको पूरी तरह जी लें, उसी मोमेंट में रह के आगे की ना सोचें, ना पीछे के लिए पश्चाताप करें। माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था, जो भी करें फुल माइंडफुलनेस। इवन ब्रश कर रहे हो, चल रहे हो, जूते का फीता बांध रहे हो, माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था में। सभी लोग कहते हैं कि बुरा वक्त आ गया। ह्यूमन लाइफ है इसीलिए रोलर कोस्टर होगा, ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे। तो जब ऊपर जाते हो तब तो किसी को नहीं कहते बड़ा अच्छा वक्त आ गया। तो आदत डालो, ईसीजी में भी जब वेव ऊपर नीचे हो रहा था तभी इंसान जीवित होता है, फ्लैट हो जाता है तो इंसान मर जाता है। इसलिए रोलर कोस्टर है तभी ह्यूमन लाइफ है। बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण संभव है, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। हैप्पीनेस, हेल्थ, हैप्पीनेस इज द वे टुवर्ड्स हेल्थ। अब हैप्पीनेस में लोगों को कंफ्यूजन है कि हैप्पीनेस और हेडोनिज्म में क्या अंतर है। हैप्पीनेस इज आनंद,
हेडोनिज्म में सुखवाद। हैप्पीनेस कभी भी इट विल इंश्योर, यू कांट परस्यू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज जर्नी, इट्स नेवर ए डेस्टिनेशन। Believe it or not, money cannot lead to happiness. And last formula is sleep. When I talk about sleep, disturbed circadian rhythm means रात में जगना, दिन में सोना lead to obesity and cancer. This is the formula how sleep deprivation lead to DNA repair, multiple time DNA repair leading to cancer. योग निद्रा is a very good solution. जिनको नींद की दिक्कत है, योग निद्रा अपने जीवन में उतार सकते हैं. When you sleep, sleep like this, and you wake up like a tender leaf, very fresh. कोई सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो और आलस ना आए, मतलब नींद पूरी हो गई. मेरे पिताजी कहते थे, जिस बुलंदी पे जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी को पाना न चाहिए. रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगे, सिर को इतना झुकाना न चाहिए. क्या ये संभव है जो भी मैंने अभी तक बताया? 3 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ बीइंग है. अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अनअटैचमेंट, मतलब आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति. क्या ये संभव है कि नीदर विल रिमेन अटैच नॉट डिटैच, मीन्स अनासक्त के स्थिति में, अनअटैचमेंट की स्थिति में? समाधान यस, GOD. गॉड को मैंने देखा नहीं, इसलिए उस वाले गॉड की बात मैं नहीं कर रहा हूं. G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर. बी जनरेटर मीन्स ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग. पूरे दिनचर्या की प्लानिंग कर लें कि आज मुझे दिन में क्या करना है. बी ऑर्गेनाइजर, विष्णु बन जाए. उसमें समुद्र की लहरें आपके दोस्त आएंगे गिराने के लिए, शेषनाग की तरफ फन लोग मारेंगे. विष्णु बन के उसका पालन करें जो ब्रह्मा बन के सुबह डिसाइड किया. एंड बी डिस्ट्रॉयर, शिव का रूप ले लें कि बाहर जितना भी क्रोध, जेलस, एंग्जाइटी बना, उसको बाहर ही उसका संहार करके तब घर लौटें. घर वाला बन के लौटें, प्रोफेशनल बन के ना लौटें. अगर ये करेंगे तो हमारे पश्चिम से हमने क्या लिया? ज्ञान विज्ञान लिया, लेकिन वहां आत्महत्याएं बढ़ी. पूरब ने हमें सिखाया, ईस्ट इंडिया ने, परम ज्ञान, आत्मक्रांति और आत्म साधना. हमारे कुछ ऐसे डेविड ब्रायंट, स्टीग, कैरोलिन मिस, ये लोग विदेश से आए, हमारे यहाँ अष्टांग योग सीख के गए. ईस्ट एंड वेस्ट को अगर मिला लें तब हम ज्ञान विज्ञान, परम ज्ञान, आत्मक्रांति और आत्म साधना और कई बीमारियों को हम चैलेंज करके हटा सकते हैं. टू कंक्लूड, फॉर बॉडी, इफ यू डू शुद्ध भारतीय भोजन, स्वच्छ जल, व्यायाम और नींद, प्रॉपर हाइजीन, एंड डोंट डू फास्ट फूड, टोबैको, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, आपके यम, नियम, आसन की प्राप्ति होगी. फॉर माइंड, डेवलप पॉजिटिव इमोशन, दैट इज मेडिटेशन, स्लीप, सो बी सोशल, हेल्प अदर्स. नेगेटिव इमोशन, अवॉइड जेलस, एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस. अगर ये करेंगे, प्राणायाम, प्रत्याहार पूरा होगा. एंड सोल के लिए, कनेक्ट योर सेल्फ टू सुपर पावर. थिंक यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ एट द एंड ऑफ योर लाइफ. नाउ एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बी able to answer anybody else, nor anybody can ask you. अगर इसको कर लेते हैं तो धारणा, ध्यान और समाधि आपको मिल जाएगी. अगर ये कर लेते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की प्राप्ति होगी. अष्टांग योग ही दुख निवारण का मार्ग है, जिसमें बीमारी भी आपकी दूर रहेगी. और ये एग्जाम्पल मैंने दिया है. स्टिग सेवेंसन, स्वीडिश लड़का है जो अंडर वाटर स्विमिंग में गिनीज बुक हर साल अपना तोड़ रहा है. अभी 25 मिनट 27 सेकंड विदाउट ऑक्सीजन, सब जीरो टेम्परेचर में जाता है. उसने किताब लिखी ब्रेथियोलॉजी, जो इंडियन अष्टांग योग का प्राणायाम है. एडवर्ड ब्रैंट, वैदिक टीचर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पेड टीचर है. कैरोलिन मिस, इंट्यूटिव जर्नलिस्ट है. इंडिया आके अष्टांग योग सीख के 7 पावर चक्र लिखा. हिरोशी मोटोयामा जापानीज है, जिसने अष्टांग योग मुंगेर योग विश्वविद्यालय से सीख के वहां जाके उसने किताब लिखी. कॉस्टलीस्ट बुक 1,58,000 की हिरोशी मोटोयामा की किताब आती है अष्टांग योग पे. इंसान की जरूरतें कितनी हैं? मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद. बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य को इकट्ठा करने में जाया करते हैं. जरूरतें बहुत कम है और जिंदगी बहुत सीमित. अगर ये सब करते हैं, सत्य चित आनंद की प्राप्ति हो, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट जॉय, आप बीमार नहीं होंगे. जाने से पहले मैं कुछ वर्कशॉप देके जाता हूं. कितने लोग हैं फॉर बॉडी जो इस तरह से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ लेते हैं? कितनी महिलाएं हैं जो इस तरह से कर लेते हैं? अगर ये कर रहे हैं तो बॉडी वाइज आप फिट हैं. माइंड, कितने लोग हैं जो प्रेजेंट, वर्तमान में जीना सीख चुके हैं? एंड सोल, अगली बार डॉक्टर का कोई प्रेजेंटेशन रखेंगे तो उसमें मैं पूछूंगा, आप अपने से सवाल आज से पूछना चालू कीजिए, हु एम आई, मैं कौन हूं? अगर इस स्थिति को पाते हैं, बीमारी क्या बेसी चीजें. सर्जन एर्गोनॉमिक्स, बिफोर गोइंग टू द ओटी I do yoga pranayam first at my home, and then in between OT, after completion operation theater, are all mates, all surgeons collectively do yoga and pranayam. आखिरी स्लाइड, चलते चलते मेडिकल और सबको मिला के
जो मैं कहता हूं इंसान को आज जो मिल रहा है उससे खुशी नहीं है, इसीलिए बीमार हो रहा है। इसी पे मैंने लिखा था, जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो पा न सके वो सोना है, निर्मल मन हो जा रे मानस, सब कुछ एक दिन खोना है। माया और प्रपंच भंवर में निर्भर किस पर होना है, कर सको कुछ कर लो बंधु, नित दिन तेरा रोना है। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना, वही 5 एलिमेंट जहां से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है, राम नाम का बीन बजाकर बस स्वाहा हो जाना है। फिर भी उलझन क्लिष्ट जीवन और तेरा कटु व्यवहार, चित्त भेदती हृदय चीरती तीक्ष्ण रुक्षण नरसंहार। समाधान क्या है? सरल सादगी जीवन यापन, नित दिन ना हो मारम मार, प्रेम भाव दया कर्म सहिष्णुता और परोपकार। प्रकृति स्नेह मधुर वाणी, संतुलित और सरल विचार, मझधार ना आएगा आड़े, हो जाएगी नैया पार, हो जाएगी नैया पार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। Dr. Anshuman, I'm like really blown over. What an amazing presentation. And I must share with the audience कि जो Dr. Anshuman Kumar ने जो presentation दी है, वो बहुत ही simply उन्होंने बहुत से जो deep Vedic जो truths हैं और बहुत ही किताबों से जो सार निकाल के उन्होंने इतनी simple भाषा में explain किया. I'm really blown over because ये बहुत deep Vedantic philosophies हैं जो उन्होंने बताई हैं in a very simple. When I say simple, matlab doable. They are doable. None of this is like something which cannot be done. And now we are open to questions. Please, I would request Kanika ki jo bhi audience se questions aa rahe hain, can you please start sharing the questions? Ma'am, an anonymous attendee has shared a question that a person with HER2 positive cancer presently on letrozole 2.5 mg and her ovaries have been removed due to a precautionary measure, and she's having hair thinning issues due to the medicine, and she wants to know that if PRP for hair is safe for her because it is slightly invasive, and her oncologist is telling her that her problem is hormonal, and the dermatologist is asking her for a PRP, that is for the hair growth factor. So Dr. Gurdeep Sethi, would I request you to take this question? Sure. I missed the first part. So this patient is on active treatment, correct? Yes, sir. And she's taking letrozole 2.5 mg and her ovaries have been removed due to a precautionary measure. Fair enough. How old is she? So the age is not written. Okay, fair. Well, so letrozole technically is an aromatase inhibitor. It with the ovaries gone, 10% of the estrogen is produced by your adrenal glands. And if it's a breast cancer, ER, PR positive, then letrozole is the right choice. Letrozole doesn't cause hair loss. So if she has hair loss, she can use any kind of therapy, oils or PRP or whatever she wants to do. Not a problem at all. I don't have an issue. Doesn't cause cancer in any way. Okay. But I think what Dr. Anshuman said, all that stuff, mind-blowing. Listen to him, follow the diet, follow the chart, follow the sleep, mind, muscle, memory, everything perfect. Just do that. I think all that will help faster than other stuff that we do. But yeah, there's no inhibition at all. Feel free to use PRP, feel free for hair growth of any kind. Not a problem. Okay. Dr. Sethi, there is another question. People are asking, where is the Phantom test available? And if you could just... Well, Phantom test today is available at Millennium Cancer Center. It's available at Meditech. We're tying up with Core Diagnostics, so they'll also be coming in. CK Birla Hospitals have lined up. UK Nursing Home in Vikaspuri has lined up. So there are different sites, but generally, if you just reach out to us, reach out to our team, Shiv will take care of it. Anywhere in NCR, we can take care of. In fact, we've tied up with Sterling in Gujarat, Bhopal. We've tied up in Imphal, different places, different centers are tying up, and they've started the program. But any questions, anybody wants Phantom, just reach out to me. My number and everything's available. We'll organize the team. Shiv from our team will take care of it. Okay. But Shikha, you should have it on your program too. Yes, we have it with us also. So yes, we will be, in fact, after the session, we'll be sharing
the details of the hospitals and the doctors who have who are our panelists, so that you can reach out to them, you can reach out to us, whatever is convenient. There are two more people who have raised hands, Suresh, Lala, and Anubha. So, Kanika, can you have their questions, please? Suresh, Lala, and Anubha, they have raised their hands. Ma'am, Miss Anubha was asking for a cancer diet. So I've shared that Dr. Seema Puri in the next session will be sharing superfoods for cancer. And we have another question by Miss Dipali Ingle, that can a person with autoimmune disease follow this and having a lot of pain in overall body all the time? So the question, can a person with autoimmune disease follow what Dr. Anshuman is saying? I think 100%. And follow the diet that Dr. Seema or Dr. Shikha's team put in, I think should be fine. But if the person has autoimmune disease and is on active treatment with immunosuppressants of any type that suppresses the immune system, then to do a Pantom test, that he or she doesn't qualify. We're using your own macrophages, which is part of your immune system, to do the internal biopsy, and we are staining those macrophages with a special protein to see if you have tumor. For Pantom, if your immune system is off, if your macrophages are low, the sample will be rejected. So when we look at when we take you for the Pantom test, we go through a questionnaire, and if you have any of these questions which tells me your immune system is off, then we tell you, don't waste your money. Your test will be rejected. Wait until you get off medicines, then we can talk. People with rheumatoid arthritis, people with Crohn's, not on any active treatment, who have been disease-free and just taking hydroxychloroquine, is okay. But if you're taking, methotrexate, azathioprine, corticosteroids, the immune system is going to be off. There we reject the samples. So we have another question from Dr. Shivam. He's asking that, can we decline Pantom reading with lifestyle and dietary modifications in high-risk patients? And if yes, how long would it take to reduce the Pantom score? So many of the patients, I won't say patients, clients or customers, they are regular customers for blood tests. When we did the study in India, we looked at the first 60 healthy people that I saw, 60 to the first 120. 70% were at the high risk of 250 to 260 zone. Okay. So I asked the Germans, I says, Hendrik, how many people in your population when you did the study were in this high zone? But there are a lot of people, 255, 258, 259, calling again and again. Doc said, 260 is the cutoff. I'm 259. Mera hai ki nahi hai? You see? So then Hendrik says, Dr. Sethi, why don't you get healthy people? I said, these are healthy people. So we went and got 60 people from the army. Our CEO was Colonel Harjeet. He went to his battalion. So 60 Jawans came up and all their scores were less than 245. We realized, sitting in Delhi, we sit. And then we are smoking 1 pack a day with the environmental air. And then we eat junk food and we drink alcohol and we smoke. So these risk factors, when we started defining and asking them to cut down those risk factors, the scores came down to 252, 250. Everybody's, tension went away. So that I used to have a green zone less than 245, gray or orange zone 245 to 260, and then the red zone positive. So gray zone wala kamna, so too many questions came. I said, look, positive or negative, there's no more. But that gray zone is your wellness sector. That's the one you need to follow Dr. Anshuman's program. All right. Shudh Hindi, it's beyond my mind. But the M and sleep, yes. I like that. I like that. Follow that. Those are lifestyle changes. Healthy eating, sleep well, less stress. But Dr. Enjoy. Dr. Gudeep, we can do that gray zone people that can be randomized or no intervention or MMS intervention and redo the test after 6 months or 1 year. Why do you want to put them no intervention? Sabko karo MMS. It is healthy. It's going to help them. See, my risk, the questionnaire that I have, the risk factor questionnaire,
multi-cancer risk assessment questionnaire has the same points you've talked about. And Exactly. we haven't talked in 10 years. Last I met Anshuman was 10 years ago when I came in the beginning with IOSPL. Right. After that, we haven't talked. He went his way, I went my way, and we've just come across out here. What a pleasure. Right. Lovely. Well done. Thank you. So I have one question for Dr. Anshuman. Dr. Anshuman, suppose somebody has already undergone mastectomy and has undergone all the cancer treatment. How much would the what should they do so that the relapse doesn't happen, or is relapse possible, like a double mastectomy 3 years back? Yeah. Considering it's not a genetic cancer, means BRCA positive, considering, because majority are non-BRCA cancer in India, 5 to 10%, 15% are BRCA positive cancer. Even for those people, this lifestyle modification should be a part of the program. But unfortunately, our majority of the hospitals, they are not sticking to that program. Why I'm saying this? कैंसर का इलाज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, कीमोथेरेपी दे दी, ये वही फिनोमिना है कि कहीं पे धुआं दिखा, हमने पानी धुएं पे छिड़क दिया, लेकिन आग कहीं लगी रह गई, 2 साल बाद फिर से धुआं निकलने लगा. मीन्स वी आर नॉट किलिंग द रूट कॉज. कैंसर बना क्यों था? तो अगर फीमेल का वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा रही गया, आपने ट्रीटमेंट कर दिया, प्लांट बेस्ड फूड उसने नहीं लिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब रहा, तो फिर आपने किया क्या? बिकॉज आर ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी, सर्जरी, जीरो डॉट काइनेटिक्स डाउन कर दिया, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो भी नॉर्मलिटी एट सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल के लेवल पे था उसको करेक्ट कर दिया. लेकिन अब फर्दर ना बने, इसके लिए ये फॉर्मूला, फूड इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर, 35%. इसको चेंज करना है. लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें वेस्ट लाइन शुड बी लेस देन चेस्ट लाइन. एक P50 रिहैबिलिटेशन, कच्ची हल्दी का रोल है, ये एस्टेब्लिश हो गया. रेस्पेरेट्रॉल जो ब्लूबेरी और ब्लैक ग्रेप्स में है, कॉपर विद रेस्पेरेट्रॉल का रोल कंफर्म हो गया कि फ्रेगमेंटेड क्रोमैटिन जो रिलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको कम करता है. इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है. वी कांट इग्नोर फूड. हिपोक्रेट, इवन मॉडर्न मेडिसिन के फादर ने कहा था कि ईदर टेक फूड एज मेडिसिन और यू हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड. तो देयरफॉर ट्रीटमेंट के साथ भी होलिस्टिक अप्रोच चालू करना ही पड़ेगा. इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी इज द आंसर ऑफ द एरा. अदरवाइज वी कैन कीप ऑन, जितने पैसे डाल दो, डॉक्टर गुरदीप अग्री करेंगे, 17.8% ऑफ यूएस जीडीपी इज गोइंग फॉर हेल्थ केयर बजट, एंड स्टिल हेल्थ केयर ऑफ यूएस इज गोइंग टू ब्लैक होल. इंडिया का बजट तो 1.9% से ऊपर नहीं जा रहा है आज तक. तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे. अगर हमने इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात नहीं की, तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम बचा नहीं पाएंगे लोगों को. No, absolutely, and so well said. And I think I want to just point out to all the audience here that today on the panel, all the people are actually those people who are earning from treatment and yet saying कि treatment तक मत पहुंचिए, prevention. So I can only applaud this. ये जज्बे को मैं सिर्फ applaud कर सकती हूँ, because most people think that doctors are not fond of prevention, but doctors are actually dedicated to prevention, and I want to just highlight that. So we would be sharing the details of the doctors to all the people who have attended. Please make sure that you share your email IDs or your numbers so that we can send the details. And I'd like to thank both our panelists for such a brilliant time. Even I have been learning so much, and we will keep bothering you again in the times to come to share your knowledge. And thank you so much. And now I'd like to invite Dr. Seema. Now we have 2 more questions. So Kanika, we can have those questions